And I'm getting this message. Meeting is now streaming live on Facebook. Okay. So, hello everyone, and a warm greeting to all of you for joining this call on dealing with depression. And today, I'm going to explain you about. I'm going to share over here about the program and a little bit about it. So let's talk is an initiative of Anand Prabha in response to COVID for initiating a conversation. पिछले कुछ महीनों में हमने इस प्लेटफॉर्म पर करीब 20 वॉलंटियर्स के साथ इसे शुरू किया, जिसमें अलग अलग थीम पर कुछ वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए गए। इस पूरी प्रोसेस में हम एक को लर्निंग स्पेस क्रिएट कर पाए। आज हम इस कॉल पर इमोशनल हेल्थ के बारे में कुछ बातचीत करेंगे और इस दौरान कई सारे बेहतर तरीके को समझेंगे, कोशिश भी करेंगे कि उन इमोशनल हेल्थ को जो टूल्स है उसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाए। Today, this call will be facilitated by me, myself Vishakha Tak, and I am working in a youth and adolescent development organization called Anand Prabha. Anand Prabha is an youth-oriented organization where we try to co-create a learning space for young people where they can understand and develop themselves by building a deeper understanding of individual actions. We also try to help them in strengthening their skills through different programs, sessions, and exposure visits, where they can become socially conscious and responsible leaders. Today, Dr. Sandeep Atre is here. He is an emotional and social intelligence expert and founder of Socialigence, a venture specializing in development of social and emotional intelligence through its online course based on neuroscience and psychology. He is also co-founder of CH Age Maker, a leading coaching organization in central India. He is an author of 2 books, Understanding Emotions Logically and Observing Nonverbal Behavior. And he is also a noted blogger and writer. In his career of closer to 2 decades, he has trained professionals of more than 50 companies and thousands of students to sort out and excel in interpersonal and intrapersonal matters. It is a great pleasure, sir, to have you over here on this call. Thank you, Vishakha. Yes. So, sir, जैसे कि हम इस पेंडेमिक के दौरान देख रहे हैं, लोगों को काफ़ी तरह की स्ट्रेस फीलिंग है, काफ़ी तरह के इमोशनल हेल्थ को लेकर सपोर्ट सीख कर रहे हैं. We can also see the causes of emotional distress, anxiety, feeling anxious, confused, overwhelmed, and sometimes powerless. आगे के रास्ते काफ़ी अनक्लियर हैं, लोग भी स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं. अगर मतलब घर में अगर देखा जाए तो कई तरह के अलग अलग सिचुएशंस हैं. अब जो पूरी इस इमोशनल हेल्थ में सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है कि सैडनेस और डिप्रेशन में लोगों को फ़र्क नहीं समझ में आता है. आप डिप्रेस्ड भी हैं, आप सैड भी फील कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी एक फ़र्क हो सकता है. तो आपके हिसाब से वो फ़र्क क्या है, अगर उसे आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकें? Great. Vishakha, can you hear me? आवाज सही है? Yes, yes. Good. विशाखा, पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर बिकॉज जब आपने मुझसे कांटेक्ट किया, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपने कांटेक्ट किया और मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल देखा तो मुझे बहुत ही अमेजिंग सी एक फीलिंग आई. वो फीलिंग ये थी कि ये कुछ यंग लोग हैं जिन्होंने एक कोजी सा सेटअप क्रिएट किया है और जो पूरी तरह से वो जो आइडियलिज्म और इंस्पिरेशन और दुनिया को बदलने की कोशिश, लेकिन किसी क्रांति के थ्रू नहीं बल्कि छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजों को करने के थ्रू, वो वैसा आप ग्रुप लगे. And that was irresistible for me. I couldn't say no to it because it's toxicating, it's wonderful. तो जब आप इसको ऐसे देखें तो वो जिस तरीके से इंटॉक्सिकेटिंग आप बात करते हैं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, पहले तो उसके लिए मेरी तरफ से बहुत सारा आप लोगों को पहले तो बेस्ट विशेस और कंग्रेचुलेशंस कि आप ये काम कर रहे हैं और 2013 से कर रहे हैं मेरे ख्याल में, isn't it?
हाँ जी। तो 7 साल हो गए। मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि पहले 3 साल किसी भी बिजनेस वेंचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और किसी भी इंस्पिरेशन से रिलेटेड सेटअप के लिए पहले 7 साल। मुझे लगता है अब आप उस तरफ आ चुके हैं, है ना? पर विशाखा 7 ईयर इच बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में भी। सो प्लीज मेक श्योर एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंस्टीट्यूशन, आप लोग जो हैं वो मौजूद रहें और बने रहें इस पूरी प्रोसेस में, isn't it? थैंक यू। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। आपका सवाल था डीलिंग विद डिप्रेशन 2, जो आपका सेशन है, उसके अंदर आपका ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई सैडनेस और डिप्रेशन में क्या फर्क है। तो पहले तो मुझे ये बड़ा, आज मैं आराम से समझाऊंगा, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली वेबिनार्स वगैरह में ना एक प्रेशर रहता है कि आप बहुत बहुत जल्दी जल्दी समझाएं, लोगों का ध्यान आकर्षित करके रखें। वैसा इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझ पर है नहीं, और वो प्रेशर मैं एंजॉय भी करता हूँ, क्योंकि उसका अलग मजा है, नो डाउट अबाउट दैट। हर हर इमोशन का सुख लेना चाहिए। लेकिन अब मैं आराम से समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा गहरा मामला है। जब आपने कहा कि सैडनेस और डिप्रेशन में क्या फर्क है, तो पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि सैडनेस एक नेचुरल इमोशन है ना? अब सैडनेस नेचुरल इमोशन है। अब मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करता हूँ कि अगर ह्यूमन बॉडी मशीन है, तो ब्रेन हमारा प्रोसेसर है और माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है। अब अगर ह्यूमन बॉडी मशीन है, ब्रेन हमारा प्रोसेसर है और माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है, तो फिर प्रोग्रामर कौन है? मतलब आप में से अधिकतर लोग तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आप जानते हैं, तो फिर प्रोग्रामर कौन है? प्रोग्रामर किसी को तो होना पड़ेगा ना। तो रिलीजन कहता है प्रोग्रामर गॉड है, और साइंस कहता है प्रोग्रामर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन ने दरअसल ह्यूमन बॉडी नाम की इस मशीन के प्रोसेसर ब्रेन में माइंड नाम का सॉफ्टवेयर जो है, उसको गढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब विशाखा, ये जो इमोशंस हैं, दरअसल ये इवोल्यूशन ने हमारे अंदर भरे हैं। तो ये इवोल्यूशन ने हमें नेचुरल इमोशंस दिए हैं, और जो 3 नेचुरल इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस हैं, वो है सैडनेस, एंगर और फियर। और इन तीनों की अपनी अपनी यूटिलिटी है। जैसे फियर में आप देखें तो आपका खून जो है पैरों की तरफ दौड़ता है। अब आप तो नहीं दौड़ाते, वो अपने आप ही दौड़ता है। क्यों? क्योंकि आप भाग सके ना। कोई चीज जो आपको सर्वाइवल में मदद करे, आप फियर हैं तो आप अचानक खून जो है पैरों की तरफ दौड़ता है और आप भागते हैं। उसी तरह से एंगर में जो है वो आप खून जो है वो हाथों की तरफ दौड़ता है। यानी आप जो है वो, आप देखिएगा खून, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने हाथों को रोक के रखते हैं, किसी को मार न दे टाइप। क्यों होता है ऐसा? राइट। क्योंकि एंगर जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जिसको लोग कहते हैं, दरअसल वो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स है। इवन फ्रीज भी उसमें इन्वॉल्व है। तो अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि अगर एंगर आया, तो आप जो है वो उसकी यूटिलिटी है, क्योंकि आप किसी को मार कर, अपने दुश्मन को मार कर वहां से हटते हैं। फियर, आप भाग कर अपने आप को बचाते हैं। पर सैडनेस की फिर क्या यूटिलिटी है, इसको कभी सोच के देखें। तो सैडनेस की यूटिलिटी ये है विशाखा, कि सैडनेस दरअसल 2 चीजें करती है हमारे लिए। सैडनेस में हम, हमारा जो दिमाग है, वो इस सैडनेस का टैग उस चीज पर लगाता है जिस चीज को लूज करना हमें अफोर्ड नहीं कर सकते हम। जैसे एग्जांपल देते हैं, आप अपने जो है वो फैमिली मेंबर्स आपसे बात नहीं कर रहे 5 दिन से, तो आप सैड हो जाती हैं। अब जब सैड हो जाती हैं तो इसका क्या फायदा है बताइए? इसका फायदा यह है कि आपको, आपके दिमाग में एक टैग लग जाता है कि फैमिली मेंबर्स आपके लिए जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे आप? चूंकि एक बार उनको दूर करने के लिए सैडनेस, जो उनके दूर होने से सैडनेस आपको महसूस हुई, तो आपने क्या किया? अब आप उस सैडनेस से बचने के लिए कोशिश करेंगे कि उस रिलेशनशिप को क्या करें, प्रिजर्व करके रखें। यस और नो? है ना? तो सैडनेस की गजब की यूटिलिटी है साइकोलॉजिकल। उसकी साइकोलॉजिकल यूटिलिटी क्या है? कि वो आपको, आपके लिए जिंदगी में जो वैल्यूएबल है उसे प्रिजर्व करने के लिए मोटिवेट करता है। मैं समझा पाया विशाखा? बिल्कुल बिल्कुल सर। सैडनेस जरूरी है। अगर आपको सैडनेस महसूस नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, आप उसे प्रिजर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब आपको वहां से मिलता है सैडनेस से। तो सैडनेस इज वंडरफुल, नो डाउट अबाउट दैट। उसका एक रोल है, और उसका रोल साइकोलॉजिकल है। अब फिजियोलॉजिकल भी उसका रोल है। क्या है फिजियोलॉजिकल रोल? आप मुझे बताइए, सैडनेस में आप क्या करते हैं? बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं या आपकी एनर्जी कंजर्व करता है? बताइए। काफी डाउन फील करने लगते हैं एग्जैक्टली जब। exactly. आप बहुत डल महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी सिंक कर जाती है। क्यों? क्योंकि भाई इवोल्यूशनरीली देखा जाए तो कोई भी इंसान जब कोई इंपॉर्टेंट चीज को लूज करता है, तो ऑफ कोर्स उसे क्या करना चाहिए? उसे रुकना चाहिए ना, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए ना, उसे थिंक थ्रू करना चाहिए ना,
ताकि वो क्या करे, अगला जो स्टेप ले वो हताशा या निराशा में न लेके क्या करके ले, वापस से नॉर्मल पर आकर ले। यस और नो, है ना विशाखा? तो Right. ये करने के लिए आपको फिजियोलॉजिकली सैडनेस क्या करती है, सैडनेस आपको एनर्जी कंजर्व कराती है। तो सैडनेस की दो यूटिलिटीज क्या हुई, पहली उसकी यूटिलिटी ये हुई कि वो दरअसल आपको आपकी जिंदगी के लिए जो वैल्यूएबल या इम्पॉर्टेंट है उसका एहसास कराती है और उसे प्रिजर्व करने के लिए मोटिवेट करती है। और दूसरा, वो आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करने के लिए प्रोग्राम करती है। और जब आप ये कर पाते हैं तो आप जो है वो बेनिफिटेड होते हैं। इसीलिए तो ये इमोशन आज तक बना रह गया हम में इतने वक्त के बाद भी। रेप्टाइल से मैमल्स, मैमल्स से प्राइमेट्स, प्राइमेट्स से फोर ग्रेट एप्स, उसमें भी बोनोबोस, तो गोरिल्ला, तो चिंपैंजी, तो ओरेंगुटान, फिर होमो इरेक्टस, फिर हम निएंड्रोडॉल्स, वहां से होमो सेपियंस, सेपियंस तक जो आए हैं। तो वो इमोशन हम में क्यों बना रह गया, क्योंकि उसकी कोई यूटिलिटी है। और उसकी यूटिलिटी क्या है, वो हमारी एनर्जी को कंजर्व कराती है और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसका एहसास, रियलाइजेशन कराती है और उसे प्रिजर्व करने के लिए मोटिवेट करती है। सही है बिल्कुल ना? बिल्कुल अब ये बिल्कुल। तो सैडनेस हुई, और सैडनेस का तो इंपॉर्टेंस आपको मैंने बता दिया। पर डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन दरअसल क्या होता है? सैडनेस में हमने दो वर्ड्स देखे, कंजर्व करती है आपकी एनर्जी सैडनेस, और दूसरा आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको, उसका रियलाइजेशन, एहसास कराती है कि क्या इंपॉर्टेंट है और उसको प्रिजर्व करने के लिए मोटिवेट करती है। अब डिप्रेशन पता है क्या होता है, डिप्रेशन इज सैडनेस गॉन रोग। अब यहाँ रोग जो है वो दरअसल इंग्लिश वर्ड बोलना चाह रहा था मैं, पर हिंदी वर्ड ही पे आ गया अपने आप ही, वो रोग ही है एक तरह से। तो डिप्रेशन क्या करता है, डिप्रेशन में आप एनर्जी कंजर्व करते करते, जो सैडनेस पे कंजर्व करते थे आप, कंजर्व करते करते आप में इनर्शिया आ जाता है। मतलब आप एनर्जी इतनी कंजर्व कर लेते हैं कि आप क्या हो जाते हैं, आप इनर्ट हो जाते हैं, आप में इनर्शिया आ जाता है, आप जो है वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से जड़ हो जाता है। ठीक है? तो क्या हुआ, ये आगे बढ़ गया, सैडनेस से आगे निकल गया। उसी तरह से आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, जब आप कुछ खोते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपनी जिंदगी में एक दोस्त को खोया, तो आप समझ जाते हैं कि दोस्ती इंपॉर्टेंट है ना? और फिर आप जो बचे हुए दोस्त हैं उनको क्या करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं। यही सैडनेस का काम था। पर दरअसल डिप्रेशन में उल्टा होता है। डिप्रेशन में आप इनको प्रिजर्व करने के बजाय इनसे क्या हो जाते हैं, डिस्पॉन्डेंट हो जाते हैं। डिस्पॉन्डेंट मतलब, खैर मैंने अपने एक दोस्त को खोया, यानी अब दरअसल मतलब ही नहीं है किसी भी रिश्ते को रखने का, क्योंकि रिश्ते तो वैसे भी खत्म हो ही जाते हैं। देखिए उल्टा हो गया ना। आपको क्या मोटिवेट करने के लिए कहा था कि प्रिजर्व करो भैया जो बचा है। आप क्या कर बैठे, आप कहते हो वैसे भी जिंदगी में सब खो ही जाना है, तो फिर प्रिजर्व क्यों करें? ठीक है? और दूसरा, आप ये कहें कि अब मैं अपने बाकी दोस्तों के बिना नहीं जी सकता, उनको खोने का डर। जब पाने की चाह खत्म हो जाती है या खोने का डर बहुत बढ़ जाता है, तो उसने क्या किया, प्रिजर्व करने का जो बेसिक लॉजिक था सैडनेस का, उसके बियॉन्ड निकल गए, और वहां डिप्रेशन शुरू होता है। तो डिप्रेशन के साथ क्या हुआ, डिप्रेशन ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो सैडनेस का कॉन्सेप्ट था, उसको एक्सट्रीम पे ले जाके इनर्शिया में कन्वर्ट करा दिया। यानी आप एकदम जड़ हो गए, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो एनर्जी कंजर्व करने के बजाय। और दूसरा, आप जो है वो रिश्ते कौन से इंपॉर्टेंट हैं उनके एहसास और उनको प्रिजर्व करने के मोटिवेशन के बजाय आप दो चीजों में चले गए। क्या? कि जो पाने की चाह ही खत्म हो गई क्योंकि आपने एक बार खो दिया, और दूसरा खोने का डर बढ़ गया क्योंकि आपको लगा हे भगवान ये भी चला जाएगा। बस, ये सैडनेस गॉन रोग जो है इसको डिप्रेशन कहते हैं। यानी डिप्रेशन को हम डिफाइन करें तो वो क्या होगा, दरअसल किसी भी सैडनेस की नेचुरल ड्यूरेशन और कमेंसुरेट इंटेंसिटी से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन। फिर से कहूंगा, सैडनेस अगर उसकी नेचुरल ड्यूरेशन और कमेंसुरेट इंटेंसिटी से ज्यादा बढ़ जाए तो वो डिप्रेशन है। कायदे से लोग जो है वो 2 हफ्ते के बाद अगर आपकी सैडनेस नहीं जा रही है, देखिए हर दुख का 13वां होता है, आप समझते हैं ना? मतलब हिंदुइज्म में तो आप देखिए 10वां, 11वां, 12वां, 13वां जो होता है वो कितना लॉजिकल है, आपने कभी सोचा? सुतक जो है 15 दिन का होता है। तो हर दुख का 13वां होता है। पर जिंदगी में कई बार आप अपनी जिंदगी में अपने दुख का 13वां नहीं कर पाते, और वो 13वां नहीं कर पाता और 14वां दिन अगर आ जाए, तो फिर जो है वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि 2 हफ्ते से ज्यादा अगर सैडनेस बढ़ी रह जाए तो फिर वो डिप्रेशन कहलाने लगती है, उसकी शुरुआती फेज कहलाने लगती है। आई होप मैं आपको फर्क समझा पाया विशाखा।
हाँ, काफी अच्छे से सर आपने इसका डिफरेंशिएशन जो है उसको एक्सप्लेन करा एग्जांपल्स के साथ एक्चुअली। तो आई थिंक जो हमारे ऑडियंस है उन्हें भी काफी क्लैरिटी मिली होगी सैडनेस और डिप्रेशन के बारे में। अब यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया कि इसमें डिप्रेशन और सैडनेस का एक जो बेसिक डिफरेंस है वो किस तरह से है। इसमें जैसे कि अभी आगे देखे हम लोग तो काफी सारी सिचुएशंस इस तरह से खड़ी हो रही है, जैसे इतने लंबे समय तक लोग घर के अंदर हैं, लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो औरतों के ऊपर काम की भी ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई थी, जैसे उन्हें घर का भी काम करना है, ऑफिस का भी करना है, स्टूडेंट्स के एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन हो गई है, और आगे जॉब को लेकर कुछ सिक्योरिटी नहीं है, काफी सारे जो इंटरव्यूज उन्होंने दिए थे और वो भी कैंसिल हो चुके हैं। तो इस तरह की काफी सारी एक सिचुएशन आकर खड़ी हुई है जो हमें हमारे आसपास भी देखने को मिलती है। अब इसमें एक इमोशनल स्टेबिलिटी जो है, जो आपका बैलेंस जो है वो पूरा बिगड़ जाता है, बिगड़ चुका है। तो इस समय में उस स्टेबिलिटी को किस तरह से वापस बनाया जा सके या उसको मेंटेन किया जा सके, तो उसके लिए किस तरह के कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं? विशाखा देखिए, अब मैं अगर डिप्रेशन की जब आप बात कर रहे थे तब मुझे, जब मैं शायद उस सवाल को अगर जवाब आगे बढ़ाता और इससे जोड़ता तो कैसे होता वो मैं आपको बताता हूँ। डिप्रेशन क्यों होता है? वैसे तो डिप्रेशन की बहुत सारी वजह होती हैं, है ना? इंसान जो भी बनता है वो दरअसल 5 चीजों से बनता है अगर देखें ऐसे तो, कि भाई वो एक प्रवृत्ति के साथ पैदा होता है ना? प्रवृत्ति यानी उसकी बेसिक टेम्परामेंट जो होता है उसके साथ पैदा होता है। तो कई लोग के दिमाग में जो है वो डिप्रेशन का एक प्रीडिस्पोजिशन होता है। दे आर मोर प्रोन टू, दे आर मोर वल्नरेबल टू गेटिंग डिप्रेस्ड, है ना? वो होता है, उसकी प्रवृत्ति के साथ पैदा होता है। दूसरा, वो परिवार जो है वो उससे वो बनते हैं, यानी आपके मम्मी पापा, आपके मामा चाचा बुआ, आपके दादा नाना दादी नानी, ये सब जो है, इनमें अगर कभी डिप्रेशन के कोई वो रहे हों, टेंडेंसीज रही हों, तो वो भी आप इनहेरिट करते हैं। तो आपकी एक प्रवृत्ति होती है, आपका एक परिवार होता है। उसी तरह से फिर आपकी परवरिश होती है कि भाई आपकी परवरिश कैसी है। आपकी परवरिश में अगर कुछ गड़बड़ है, अगर आपके माँ बाप ने अच्छे से परवरिश नहीं की, उस घर का माहौल बहुत खराब था, तो उससे जो है वो क्या होता है, उससे फर्क पड़ता है। या स्कूल में जो है वो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बुरा रहा हो, तो उससे जो है वो फर्क पड़ता है। चौथा, परिवेश, उस टाइम पे एनवायरनमेंट कैसा रहा, आप जो बड़े हो रहे थे तो। और आखिरी, परिस्थितियां आपकी जो है, उससे इंसान क्या करता है, डिप्रेशन में जाता है। तो ये 5 चीजें हुई। पर डिप्रेशन की अगर मैं वजह 3 बताऊं कि भाई डिप्रेशन की बेसिक वजह क्या होती है, तो वो 3, इन चीजों के अलावा 3 होंगी क्या, पहले ध्यान से सुनते हैं। पहला, किसी भी तरह का एक्सट्रीम एक्सपोजर जो है, इट मेक्स यू वल्नरेबल टू डिप्रेशन। एक्सट्रीम एक्सपोजर किसी भी तरह का, है ना? दूसरा, किसी भी तरह की पीक प्रेफरेंसेस। पीक प्रेफरेंसेस मतलब इंसान जो है वो क्या करता है, मतलब या तो एकदम ही जो है वो लोगों में घुलने मिलने लगता है, उनके बिना नहीं रह पाता, पार्टियां ही पार्टियां, या एकदम ही अकेले रह के गजलें सुनना, या एकदम ही जो है वो पैसे के पीछे भागना, या एकदम ही जो है वो स्पिरिचुअल हो जाना और सब कुछ छोड़ के जो है वो संन्यास लेने की कोशिश करना। इस तरह की पीक प्रेफरेंसेस जो होती हैं, कि या तो खुल के जियो, या तो मतलब somebody who was not जिसको हम कहते हैं ना बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, हाउ कैन दैट पर्सन बी ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, ऐसे दुनिया भर की जो पंगे वाली लाइनें रहती हैं, ऐसा आपने अगर कर दिया तो फिर आप डिप्रेशन की तरफ प्रोन होता है। तो आप एक्सट्रीम एक्सपोजर किसी भी तरह का, दुख सुख जो है वो अचानक बहुत ज्यादा आ जाए, आपको जान के आश्चर्य होगा, लॉटरी लगने के बाद जो है वो लोगों का, अधिकतर लोगों का डिप्रेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम एक्सपोजर हो गया ना अचानक से। या फिर आपको किसी की डेथ हो गई, भगवान न करे, तो वो जो है वो उससे होता है। ये एक्सट्रीम एक्सपोजर है। दूसरा, पीक प्रेफरेंसेस हैं आपकी, कि भाई आप जो है वो बहुत पीक की तरफ जो है वो चाहते हैं जाना। और तीसरा, अगर आपका सबमिसिव सप्रेशन हो, यानी आप किसी भी इमोशन को अगर सप्रेस करने लग जाएं, तो आप डिप्रेशन की तरफ ज्यादा प्रोन होते हैं। ठीक है? अब अगर आप अभी का पेंडेमिक देखें, कोविड देखें, तो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे हम एक्चुअली सब लोग एक्सट्रीम एक्सपोजर हमें हुआ है, क्योंकि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह का कुछ होगा। तो ये डिप्रेशन के लिए देखा जाए तो बहुत ही नेचुरल ट्रिगर है, अनडाउटेडली। और ये तो होने के चांसेस जो हैं वो नो डाउट ज्यादा है, क्योंकि एक्सट्रीम एक्सपोजर है ना, वो लोग जो कि वो गाना है ना, कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। तो वो वैसे ही हो गया कि जो लोग जो है वो महीने में बमुश्किल 4 घंटे साथ में बिताते थे, वो जो है वो पिछले 3 महीनों से लगातार साथ रह रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा झटका है वैसे भी बहुत सारे लोगों के लिए।
जो है किसी भी तरह का सपोर्ट सिस्टम जो है वो गायब हो गया, तो देखिए आप ध्यान से एक्सट्रीम एक्सपोजर है, तो इस टाइम डिप्रेशन की टेंडेंसीज ऑफ कोर्स ज्यादा बढ़ेंगी। मतलब इट इज नेचुरल, कोई भी इंसान अगर कॉमन सेंस लगाएगा तो वो ये बात समझ जाएगा कि एक्सट्रीम एक्सपोजर है तो डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा है। और कोई भी कॉमन सेंसिकल इंसान, कोई भी लॉजिकल इंसान जिसको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये डिप्रेशन के लिए बहुत ही वल्नरेबल फेज है, वो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखिए, अभी पेंडेमिक में जब सब अनसर्टेनिटी हो जाती है, इतनी सारी अनप्रडिक्टेबिलिटी इतनी सारी है, एम्बिग्युइटी इतनी सारी है, जिसे लोग वो का वर्ल्ड कहते हैं ना आजकल, उसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है, क्या है? आप जो है वो लाइफ के लैंडस्केप को, फिर से कहूंगा, आप लाइफ के लैंडस्केप को एक कंट्रोलेबल छोटे से पोर्शन में क्या करें? बांट दें। ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन में बांट दें, और एक टाइम पर उस एक छोटे पोर्शन पर ही ध्यान दें, और उसको अपनी हैबिट बना लें। बस, यानी तीन चीजें, क्या? डिवाइड योर लाइफ इनटू कंट्रोलेबल्स एंड नॉन कंट्रोलेबल्स या अनकंट्रोलेबल्स। अब आप जिसको कहते हैं ना कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल, अभी मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? अभी मैं सिर्फ विशाखा से मैं बातचीत कर रहा हूं, इसे कंट्रोल कर सकता हूं। इसके अलावा जो भी कुछ चल रहा है उसको कंट्रोल में नहीं कर सकता। अनलेस कुछ ऐसा हो जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, तो मैं फिर क्या करूंगा? फिर मुझे कंट्रोल करना फिर भी आसान होगा, मैं विशाखा से इस बात को, मीटिंग को लीव करूंगा और उधर भाग जाऊंगा। ठीक है ना? तो अभी मेरा फोकस पूरा कहाँ होना चाहिए? वन थिंग एट अ टाइम। ठीक है, वन थिंग एट अ टाइम, यानी लाइफ के लैंडस्केप कंट्रोलेबल में बांट लो, बहुत छोटे से एक हिस्से को। दूसरा, बिकम अ क्रीचर ऑफ हैबिट्स, बहुत ही क्लियरली हैबिट्स में ढाल लो अपने आप को। ठीक है, अपने आप को ऑटो मोड में डाल दो, जिसको अपन कहते हैं ना। और तीसरा है वो वेरी वेरी क्लियर शेड्यूल, बहुत ही क्लियर सा शेड्यूल रख लो आप। तो क्या करो, आप कंट्रोलेबल में बांट लो कि भाई मेरा हफ्ते भर के ये काम। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई सेल्स मैन है, अब वो ये सोचता रहे कि अभी तो कौन खरीदेगा, अभी तो क्या खरीदेगा, क्या फर्क पड़ेगा, लोग जो है वो अभी मेरा जो है वो काम क्यों, मेरा माल क्यों खरीदेंगे, अभी तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी पंगे हैं। ये बकवास करना बंद कर दो। क्या करो, अभी सिर्फ अपने बारे में क्या करो, अपना एक बड़ा क्लियर सा कॉल लिस्ट बनाओ, 25, और सबको एक एक करके कॉल करते जाओ। ठीक है ना? तो आप क्या कर रहे हो? आप दरअसल वही बन गए ना जिसको आप गीता बनाने की कोशिश कर रही है, भगवत गीता कर्म प्रधान। आपने क्या किया? आपने सब बकवास करना छोड़ी कि अब तो बिजनेस का बुरा टाइम है, वो कुछ भी है। आपने स्ट्रेटेजाइज किया, 25 कॉल्स की लिस्ट निकाली, एक एक कॉल करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, करते गए। आपने दिन में इतने कॉल किए, 25 कॉल किए 3 बजे तक, फिर एक ब्रेक लिया, फिर वापस आए, फिर अगले 20 कॉल किए। यानी क्या कीजिए? वही तीन चीजें, डिवाइड लाइफ लैंडस्केप इनटू कंट्रोलेबल्स, बिकम अ क्रीचर ऑफ हैबिट्स, एंड क्रिएट अ वेरी क्लियर शेड्यूल फॉर यू। अगर आपने ये तीन चीजें करना शुरू कर दी, एंड यू टेक वन थिंग एट अ टाइम, तो आगे पीछे हम इससे निकल जाएंगे। क्योंकि ह्यूमन एबिलिटी टू अडेप्ट जो है ना विशाखा, वो बहुत जबरदस्त है। पर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? लोग बकवास बहुत करते हैं, लोग काम नहीं करते। लोग जो है वो बिना बात के गुंथारे, जिसको कहते हैं ना हम हिंदी में, वो बहुत सारे करते हैं। मतलब दुनिया भर की बहस कर लेंगे, वो सामाजिक और राजनीतिक और जिसको हम कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक, और इन सारी जो है वो इन सारे पटलों पे बात करते रहेंगे। पर पट्टे जो है वो न तो अपना शेड्यूल सेट करेंगे, न वो काम के लिए बहुत क्लियर सी हैबिट्स विकसित करेंगे, और न ही बहुत ही क्लियर सा कंट्रोलेबल बना के उसके ऊपर फोकस करेंगे। अब वो ये नहीं करेंगे राइट, अगर, फाइनली राइट, इमेजिन वो क्या हो गया है, पोस्टपोन हो गया किसी की एग्जाम, तो वो क्या करेगा? वो क्या ये सोचता रहेगा कि जीवन में मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये कैसे होगा, अब क्या होगा, ये दुनिया भर की बातें क्यों करेगा? वो तो अभी क्या करेगा, वो बोलेगा आज मैं अलजेब्रा पढ़ूंगा। बस ये क्या हो गया, ये कंट्रोलेबल हो गया, अब वो अलजेब्रा पढ़े, दैट्स इट। आज मुझे 5 जगह अप्लाई करना है, ये क्या है? ये कंट्रोलेबल है। सो प्लीज फोकस ऑन दीज थ्री थिंग्स। एंड फोर्थ, फिर से कहूंगा मैं, divide life's landscape into controllables. Second, become a creature of habit, create a very clear schedule, and take one thing at a time. अगर आप ये करते रहे तो आगे पीछे हम इससे निकल जाएंगे। वेल एक्सप्लेन सर। एक्चुअली आप आपने अभी बीच में ये भी बात कही थी कि जिस तरह से अगर हम हमारे स्केड्यूल को डिवाइड कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल अभी इस तरह से निकल कर आ रहा है कि अगर मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे 2 वीक ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं सैडनेस से बाहर नहीं निकल कर आ पा रही हूँ, तो उस टाइम पर कहीं से भी मन नहीं लगता है किसी भी चीज को करने का। अगर
उस समय के पहले अगर मेरी फेवरेट चीज हुआ करती थी कि मैं कुछ कविताएं लिखूं या कुछ ड्राइंग्स बनाऊं, पेंटिंग करूं, कहीं बाहर घूमने जाऊं, और उससे मेरा मन बहल जाता है। लेकिन इस समय में ना मेरी हिम्मत हो पा रही है बाहर जाने की, और ना मैं कुछ समझ पा रही हूँ किसी भी चीज को करने का। अब एक ही चीज को बार बार वहीं पर ही दोहराना और सिर्फ एक ही जगह पर बैठे रहना, चुपचाप सुनते रहना। तो इस तरह की काफी सारी जो सिचुएशन हमें दिखती है इमोशनल हेल्थ में भी। तो अब इसमें अगर आप अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि डिप्रेशन के अर्ली साइंस क्या क्या हो सकते हैं, आप कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती है जिससे आप उस चीज को क्योर कर सकते हो इनिशियली। अगर जैसे कहा जाता है कि शायद बातचीत अगर आप करना शुरू कर दे, आप मतलब हर एक व्यक्ति की लाइफ में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे आप अपने सारे मन की बातें कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं या ऐसी एक्शन हो सकती है जिससे हम उस अर्ली साइंस को पहचान पाए और कुछ क्योर लेकर आ पाए उसके लिए। गुड क्वेश्चन। पर ये बहुत सारे क्वेश्चन का बुके था ये, है ना, मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। तो मैं एक एक क्वेश्चन लेता हूँ, जो आपका बुक है उसमें से एक एक चीजें निकालता हूँ। पहली चीज तो आपने जो कहा कि भाई उसके सिम्टम्स क्या है, उसके सिग्नल्स क्या है। तो अब मेरा एरिया तो जो है वो इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस है, मैं साइकियाट्रिस्ट तो नहीं हूँ। पर जो ओवर द इयर्स ऑफ कोर्स जो सारे लिटरेचर जो है वो हम सब लोग अगर नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं उससे थोड़ी सी चीजें आपको बताता हूँ, है ना। डिप्रेशन का आपको याद है हमने बात की थी कि सैडनेस और डिप्रेशन में क्या फर्क है, कि कंजर्व करना एनर्जी इनर्शिया में कन्वर्ट होने लगता है, और प्रिजर्व करना वैल्यूएबल या इंपॉर्टेंट चीज को या तो उसकी तरफ क्या बना देता है आप, कि मेरे को तो कुछ भी नहीं मेरे साथ रहेगा, हमेशा चीज चली जाएगी, और दूसरा खोने की चाह, पाने की चाह खत्म हो जाए और खोने का डर बहुत बढ़ जाए, तो वो डिप्रेशन हो गया। तो इसके साइंस जो है वो सारे फिजियोलॉजिकल हैं। कैसे हैं कि भाई आपकी नींद जो है वो होना बंद हो जाती है, आपकी नींद बहुत बार खुलने लगती है, आपको नींद आती नहीं है, इंसोम्निया जिसको हम लोग कहते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपका भूख की तरफ जो है वो ध्यान, जो जो मन है जो वो चटने लगता है भूख की तरफ। या फिर क्या होता है, आपके विथड्रॉल हो जाता है, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, लोगों से मिलना कम कर देते हैं। आप क्या करना शुरू कर देते हैं, आप शुरू कर देते हैं कि भाई आप जो है वो जिन चीज़ों को आप एंजॉय करते हैं, जैसे आपने कहा कविता लिखना आपको पसंद था, तो आप उससे दूर होने लगते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप क्या करने लगते हैं, आप जो है वो एक, जिसको कहते हैं ना, एक सडन एक ऐसा लगता है कोई कोई अ, जिसको कहते हैं ना बादल की तरह जो है वो दिमाग पर छा गया है, और आप जो है वो कुछ नहीं कर पाए हैं, इस टाइप की फीलिंग आने लग जाती है, डलनेस जिसको हम लोग कहते हैं। ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। अब देखा जाए तो ये सारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिग्नल जो है आपके नर्वस सिस्टम से, वो आपको ये बताना शुरू कर देते हैं कि आप जो है वो यू लूजिंग इट, है ना, वो आपको समझ में आने लग जाता है। इरिटेबल हो जाते हैं कई बार, कुछ थोड़े मेनिया की तरफ चले जाते हैं, उनके आउटबर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग पड़े ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ये सारी चीजें होती हैं अनडाउटेडली, है ना। पर यहाँ पर अब आपने जब कहा ना कि ये मन नहीं करता, वहां से ही मेरी प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए, डिप्रेशन का जब भी इस तरह के कोई सिम्टम्स आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो कहा ना, कोई एक इंसान तो होता है आपकी जिंदगी में जिससे आप सारी बातें कर सकें। मेरा मानना है प्रॉब्लम ही वहां शुरू होती है, कि आपकी जिंदगी में ऐसा एक ही इंसान क्यों है, ऐसे 5-8 इंसान क्यों नहीं है। पहले तो मेरी ये प्रॉब्लम है आप लोगों से या मुझसे भी, मतलब किसी से भी, कि 5-8 क्यों नहीं है आपके पास जिंदगी में, एक ही क्यों है। मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर कोई भी थोड़ा सा भी फाइनेंस से सिखाए, तो वो क्या कहता है, वो कहता है आपको क्या करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, एक ही चीज में सारा, ऑल पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये करना चाहिए कि आपको नहीं करना चाहिए ना। आपको अपनी जिंदगी में अपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो ऐसे क्रिएट करना चाहिए कि आप किसी एक या दो पर डिपेंडेंट ना रहें, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, हम में से अधिकतर लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ ही है कि हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया ही नहीं कभी। हम जो है वो हमारी जिंदगी में कहते हैं ना वो, और इतने बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, मैं आपको क्या बताऊं विशाखा। मतलब एक इंसान है जिसके बिना में, एक यार हम सब समझते हैं, हमारी सबकी जिंदगी में ऐसे एक दो ही लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पर यार कम से कम आप अपनी जिंदगी का एक्सपांस तो बढ़ाओ, आप सोशल एनिमल हो। आप फाइनली ये तो कोशिश करो कि अपनी जिंदगी में ऐसे 5-8 लोग रहें जिनसे आपका जुड़ाव इतना रहे। ऑफ कोर्स एक दो ही बहुत नजदीक होंगे, पर इतना भी ज्यादा ना करो कि वो उसी में पूरी तरह से इन्वेस्ट कर दो, पहली चीज। तो पहले तो ये कि किसी एक इंसान से बात करना चाहिए नहीं, मेरा मन है सबसे करते रहना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, आप ये करो। अब आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपका सवाल था कि भाई वो करने का मन ही तो नहीं करता। पहले तो वो करने का मन करता था, अब तो वो करने का मन ही नहीं करता। अब यहाँ पर इमोशंस को लेकर दरअसल दो विचारधाराएं, स्कूल्स ऑफ थॉट होती हैं विशाखा। वो कौन सी स्कूल ऑफ थॉट होती है, पहला,
मेरा मन नहीं कर रहा अच्छा, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। ठीक है ना, ये जो है क्या अप्रोच है कि मेरा मन नहीं कर रहा इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। विशाखा ठीक उल्टा है। अगर आप पढ़ने लग जाएंगे तो आपका मन अच्छा होने लग जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक में क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फील करूंगा तब वर्ब करूंगा, और दूसरा क्या है, वर्ब करूंगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फील होगा। सिंपल सा थॉट है ना। जैसे एग्जांपल दो, जिस दिन आप बहुत सैड महसूस कर रहे हो, आप तेज चलना शुरू कर दो। ठीक है ना, तेज चलना शुरू कर दो, जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दो। आप रियलाइज करोगे आपका बायो फीडबैक जो है वो दरअसल आपके इमोशंस पे फर्क डालेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आप ध्यान से देखना, डिप्रेस लोग अगर दौड़ने लग जाएं, डिप्रेस लोग अगर थोड़ा खेलने लग जाएं, डिप्रेस लोग अगर ये करने लग जाएं तो उनको दरअसल अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। पर वो क्या कहते हैं, चूंकि हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं। जबकि उल्टा है, चूंकि आप ये नहीं कर रहे हो इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। एज सिंपल एज दैट, सिंपल सा लॉजिक है ना। अब वापस आते हैं, अगर आप डिप्रेशन के सोल्यूशन देखो तो वो कौन से सोल्यूशन होंगे? ठीक है, डिप्रेशन के सोल्यूशन दो ही हैं, एक है केमिकल इंटरवेंशन और दूसरा है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब हमारे सोचने से रिलेटेड, है ना। तो केमिकल इंटरवेंशन, दूसरा कॉग्निटिव। ठीक है, अब केमिकल भी दो तरह के होते हैं विशाखा। पहला, नेचुरली सिक्रीटेड केमिकल्स। ठीक है, नेचुरली सिक्रीटेड केमिकल्स, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो दरअसल क्या है, हमारा ब्रेन एक केमिकल फैक्ट्री की तरह है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो थिंकिंग कोई फिलोसॉफिकली इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नहीं है विशाखा, थिंकिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और चूंकि थिंकिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, तो केमिकल्स जो अंदर जो है हमारे सिनेप्सिस में रिलीज होते हैं हमारे न्यूरॉन्स के बीच में, उन केमिकल्स की वजह से दरअसल हमारे को जो भी महसूस होता है वो होता है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो चूंकि ब्रेन एक केमिकल फैक्ट्री है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और चूंकि थिंकिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इसलिए केमिकल्स दो तरह से जो है वो इंड्यूस किए जा सकते हैं डिप्रेशन के लिए। कौन सा? पहला, नेचुरली सिक्रीटेड। जैसे आपको जब कोई गले लगाता है तो आपको अच्छा अच्छा क्यों महसूस होता है? क्योंकि ऑफ कोर्स एक प्लेजरेबल केमिकल जो है वो क्या होता है, सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन थोड़ा सा सिक्रीट होता है। ठीक है ना। तो फाइनली क्या होता है, आपको जब अचानक से कोई नया मैसेज आता है, लाइक आता है या दो वो मिलता है, मैसेज मिलता है, तो आपको थोड़ा बेहतर क्यों महसूस होता है? क्योंकि वो डोपामीन के छोटे छोटे डोजेज हैं। तो ये क्या है, ये केमिकल्स अपने आप ही क्या होते हैं, अंदर सिक्रीट होते रहते हैं। आपने कभी देखा है विशाखा, जब आप बहुत तेज दौड़ रहे होते हो या बहुत सारे लोगों के साथ खेल रहे होते हो, तो गिरने के बाद उठ जाते हो और फिर खेलने लग जाते हो, और आपको उस टाइम दर्द नहीं होता। ठीक है, फिर बाद में जब घर आओ तो जब सुबह उठो तब आपको समझ में आता है घुटना कितनी बुरी तरह से घुटाया था, है ना। वो क्यों होता है आपको? इसलिए होता है क्योंकि उस समय आपके नेचुरल जो पेन रिलीवर्स थे, एंडोर्फिन्स थे, वो रिलीज हुए। और वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है हम सबकी जिंदगी का। क्यों अच्छा लगता है जब सब लोग हमारे काम को देखकर ताली बजाते हैं या हमको बहुत बड़ाई करते हैं? एक सेरोटोनिन का रिलीज होता है। अब ये फाइनली क्या है, ये सब नेचुरली प्रोड्यूस्ड केमिकल्स हैं जो अंदर हैं, ऑलरेडी हैं। दूसरे क्या होते हैं, जब नेचुरली प्रोड्यूस केमिकल्स किससे होंगे बताइए मुझे, क्या करने से रिलीज होंगे बताइए? ये सारी चीजें करने से, लोगों के साथ रहने से, खेलने कूदने से, एक्सरसाइज करने से, भागने दौड़ने से, कुछ पढ़ने से, छोटी छोटी विक्ट्रीज पाने से, कुछ ऐसा काम करने से जिसको करने के बाद अच्छा लगता हो, भली करते वक्त अच्छा ना लगता हो, है ना। तो ये किसी की मदद करने से, ये सारी चीजें, कुछ लिखने से, ये सब क्या है, इन सब से केमिकल्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं ना विशाखा। पर वो कैसे केमिकल्स हैं, नेचुरल है या नहीं? Yes. नेचुरल है, नेचुरली केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब दूसरा क्या है, जब ये नेचुरली केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो दूसरा तरीका क्या है केमिकल्स का, वो है फार्मेकोलॉजिकली एडमिनिस्टर्ड केमिकल्स। अब वो फार्मेकोलॉजिकली एडमिनिस्टर्ड जो है केमिकल्स, वो किसके थ्रू आते हैं? वो एंटी डिप्रेसेंट्स के थ्रू होते हैं। अब एंटी डिप्रेसेंट्स अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट्स जो है वो मेजर चार तरीके के होते हैं, है ना। अब जैसे एक जो है वो होता है ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। अब जितने भी ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स हैं उसमें एक तरह का केमिकल आता है। दूसरा है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, यानी जो सेरोटोनिन जो बार बार रीअपटेक हो जाता है उसको इनहिबिट कर दें, है ना। यानी आपके सिनेप्सिस में सेरोटोनिन नाम का केमिकल ज्यादा बना रहे तो आपको अच्छा महसूस होगा। फिर जो है वो एसएनआरआईज होते हैं, सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। फिर जो है वो मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये जो है ये क्या है, ये दरअसल वो सारा केमिकल अंदर डाल के आप इंजेस्ट करते हैं, आप उसको लेते हैं, वो ब्रेन तक पहुंचता है और वो वही चीज करता है जो कि नेचुरली सिक्रेटेड केमिकल्स अब नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनली मेरा मानना है कि केमिकल्स अगर
डालने ही अपने अंदर, प्रोड्यूस करने ही है, तो दो तरीके से कर सकते हैं, नेचुरली सिक्रीट कराओ या कराओ क्या, या फार्मेकोलॉजिकली एडमिनिस्टर कर दो अंदर, यही कर सकते हो ना। तो मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, दूसरा तरीका भी बता दूं, एक तो केमिकल के थ्रू आप डिप्रेशन ठीक कर सकते हो, और दूसरा क्या है, कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव मतलब आपकी सोच से, यानी आपकी जो बिलीव्स हैं, आपके जो पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग है, उसके थ्रू आपके केमिकल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। मतलब अभी आप आंख बंद करके जो है वो कुछ अच्छा महसूस करने लग जाओगे तो मुस्कुराहट आ जाएगी, आंख बंद करके बुरा महसूस करने लग, कुछ सोचने लग जाओगे तो मुस्कुराहट चली जाएगी। फाइनली है तो कॉग्निटिव ना ये बहुत कुछ। तो वो जो कॉग्निटिव पोर्शंस हैं, वो कॉग्निटिव पोर्शंस जो कि आपके बिलीव्स, आपके पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, आपके इंटरप्रिटेशंस की जो एरर ऑफ जजमेंट है, उसे भी ठीक करा जा सकता है। तो फिर से वापस आए, डिप्रेशन को क्योर करने के दो तरीके कौन से हुए, केमिकल या कॉग्निटिव। केमिकल में भी दो तरीके हुए, कौन से, एक नेचुरली सिक्रेटेड केमिकल्स और दूसरे फार्माकोलॉजिकली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल्स। अब मुझे एक बात बताइए, आप ही कॉमन सेंस ला के बताइएगा, आपको जैसे ही महसूस होना शुरू हो कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो आपको उस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग होना चाहिए, किसके, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फील होगा तब वर्ब करेंगे, ऐसा नहीं, वर्ब करेंगे तब एब्स्ट्रैक्ट नाउन फील होगा। सही है? बताइए इसमें से कौन सी प्रोसेस में जाना चाहिए आपको, आप ही बताइए विशाखा। आई थिंक बेटर शायद यही हो सकता है कि खुद को पुश करके देखा जा सकता है। ब्रिलियंट, यानी आप उस पहले तो कौन अगर सी ही स्कूल ऑफ बना थॉट पे जाइए विशाखा, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर हुआ? श्योर। राइट। अब आप मुझे बताइए कॉमन सेंसिकली, बिल्कुल कॉमन सेंसिकली, कि अब अगर आप इस थॉट को बिलोंग करती हैं तो मुझे बताइए, आप नेचुरली सिक्रेटेड केमिकल्स लाना चाहेंगी अपने अंदर या फार्माकोलॉजिकली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल्स लाना चाहेंगी पहले? आई विल गो विथ नेचुरल। ग्रेट, है ना, हम सब नेचुरली, क्योंकि हम उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन की एबिलिटी टू रीइंस्टेट इटसेल्फ जो है वो क्या हो पाएगी, और स्ट्रांग हो पाएगी, वो अपना ही ठीक कर पाएगा, ठीक है ना। तो आप कोशिश कीजिए पहले उसके थ्रू जो है वो ये सब चीजें ठीक करने की। अब अगर नेचुरली प्रोड्यूस केमिकल से, सिक्रेटेड केमिकल से भी कुछ भी नहीं हो रहा है, उसके बावजूद आपका दिन आपने बहुत अच्छे से प्लान किया है, सब कुछ किया है, उसके बावजूद अब डिप्रेशन अगर आ रहा है और कंटिन्यू कर रहा है, तब यू शुड गो फॉर कौन सी चीज बताइए, आप फार्माकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेड केमिकल्स पे रहना चाहेंगे या कॉग्निटिव पे जाना चाहेंगे, बताइए। अगर एक लंबे दौरान के बाद भी ये सारी चीजें ठीक नहीं हो पा रही है, देन मे बी आई स्विच टू फार्मिकल हाँ, पर आफ्टर। कॉग्निटिव पे क्यों नहीं जा रहे आप? अब आपको कॉग्निटिव पे जाना चाहिए, यानी सोच बदलने के उसके ऊपर, ठीक है ना। आपने बिहेवियर बदल के देख लिया, हैबिट्स बदल के देख ली, वो नहीं हुआ, तो फिर आप क्या कीजिए, कॉग्निटिव वाले पे जाइए। अब कॉग्निटिव के तरीके क्या हैं, आप साइकेट्रिस्ट से नहीं, आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, आप साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिलिए। आप जो है वो साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, साइकेट्रिस्ट अलग होते हैं। साइकेट्रिस्ट जो है वो डॉक्टर्स हैं, मतलब दे आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स, और वो आपको केमिकल्स के थ्रू, वो भी करते हैं काउंसलिंग ऑफ कोर्स, पर वो केमिकल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपको करेक्ट कर सकते हैं जो भी अंदर चल रहा है ना। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ये नहीं कर सकते। साइकोलॉजिस्ट जिसको अपन कहते हैं ना टॉकिंग क्योर, वो टॉकिंग क्योर करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम लोग सीबीटी कहते हैं, है ना। आप चाहे वो आरईबीटी कहो, रैशनल इमोटिव, या फिर रैशनल इमोशनल, या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल, दुनिया भर के जितने भी तरीके हैं, वो सब जो है वो करते हैं। क्या करते हैं आप, फाइनली काउंसलर कोशिश करता है, साइकोलॉजिस्ट कोशिश करता है कि वो आपके जो स्कीमाज हैं ब्रेन के, आपके माइंड के, वो जो स्कीमाज हैं, उस स्कीमाज में जो बिलीव्स आपने होल्ड करके रखे हैं, जिस तरह से आप इंटरप्रेट करते हैं, जिस तरह से आप पैटर्न ऑफ थिंकिंग में फंस गए हैं, वो बदलने की कोशिश करें। तो क्या करेंगे, पहले पहले खुद नेचुरली सिक्रेटेड केमिकल्स कोशिश कीजिए कि हो, फिर नहीं हो तो क्या करिए, कॉग्निटिवली उसको बदलने की कोशिश कीजिए। अगर वो भी नहीं हो तब जा चाहिए, बताइए। राइट। एक्चुअली मुझे इसमें जिस तरह से अभी आपने ये पूरी प्रोसेस विशाखा एक एक्सप्लेन की सेकंड, है, पर मैं इसमें कंप्लीट कर एक दूं, चीज और। वेट वेट, sorry, तीसरी बात बची है, कि भाई तीसरी बात क्या है, अगर आपको नेचुरली सिक्रेटेड केमिकल से भी ठीक नहीं हो रहे हैं आप, अगर आप कॉग्निटिव चेंजेस से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तब फिर क्या करिए, केमिकल के लिए जाइए, यानी फिर राइट। आप साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। और साइकियाट्रिस्ट जो है वो ऑफ कोर्स आपको जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट दवाई देगा। अच्छा, वो भी एकदम से नहीं पता चलती अप्रोप्रिएट दवाई, क्योंकि ब्रेन का मामला है, तो बहुत सी चीजें जो है वो कौन सा केमिकल आपको सूट करता है, क्या नहीं करता है, वो सब जो है थोड़ा सा वक्त लेके, करीब 15 दिन लगते हैं इस बात को समझने में कि आपके लिए कौन सी दवाई सूटेबल है और वो आपको ठीक कर रही है, नहीं, वहां तक होता है। लेकिन सीधे ये करने की कोशिश मत कीजिए, पहले वो दो चीजें जरूर कीजिए। ओके विशाखा, तो शायद। सर जैसे कि अभी आपने एक्सप्लेन करा, जैसे अभी आपने एक्सप्लेन करी ये सारी पूरी प्रोसेस, तो इसमें कई बार ये भी देखा गया है कि
अगर डिप्रेशन को देखा जाए तो वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक माइल्ड होता है, एक मीडियम होता है और फिर तीसरा होता है सीवियर। अब कई बार ये होता है कि माइल्ड सिचुएशन में ही कुछ साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब मेडिसिन का अगर देखा जाए तो सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, इट्स ऑलवेज अबाउट एक्सपेरिमेंट। शायद कुछ मेडिसिन आपकी बॉडी को जल्दी सूट कर जाए और कुछ दवाइयों की ट्रीटमेंट से आपको लंबे समय के बाद आप पर असर होगा। बिल्कुल सही तो बात। इस सिचुएशन है, इसमें कैटेगरी में किस तरह का ट्रीटमेंट काम करता है, अगर हम इन्हें कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड कर दें? कैटेगरी वाइज भी आप जो कहते हैं ना, आपने कहा माइल्ड, मीडियम, जो सीवियर है, दरअसल डिप्रेशन के टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं। मतलब कई लोगों को सीजनल जो है वो उससे डिप्रेशन होता है, कई लोगों को जो है वो माँ बनने के बाद डिप्रेशन होता है, कई लोगों को कोई बहुत बड़ी टर्मिनल डिजीज होती है तब डिप्रेशन हो जाता है, कई लोगों को दरअसल अगर कोई छोटी सी चीज़ है सही लेकिन ठीक नहीं हो रही है, एलर्जी ठीक नहीं हुई 5-5 साल, तो उससे जो है वो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को दरअसल सिचुएशनल डिप्रेशन हो जाता है, कई लोगों को जो है वो एटिपिकल डिप्रेशन हो जाता है, कई लोगों को जो है डिप्रेसिव साइकोसिस, मतलब डिप्रेशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ 3 टाइप का है, पर इंटेंसिटी में ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा, वो 3 ही टाइप के होंगे कि भाई माइल्ड होगा, मीडियम होगा, एक्सट्रीम होगा, या फिर आप जिसको सीवियर कह रहे हैं। अब मेरा इसमें बड़ा सिंपल सा थॉट है कि इसके चांसेस बहुत कम है कि इंसान एकदम से सीवियर डिप्रेशन में चला जाए। इसके चांसेस कम है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर उसकी एक हिस्ट्री रही है, मैंने कहा ना, उसकी प्रवृत्ति, उसका परिवार, उसका परिवेश, उसकी परिस्थितियां, उसकी परवरिश, इसमें अगर कोई बहुत बड़ा लोचा हुआ है जिसको हम कहते हैं ना, तो फिर क्या है, फाइनली उसके लिए ये चांस है कि वो क्या करे, शायद सीवियर डिप्रेशन में सीधे डायरेक्टली चला जाए। ऐसे नॉर्मली नहीं होता है ना। नॉर्मली इंसान धीरे धीरे महसूस करना शुरू करता है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, उसको समझ में आने लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको समझ में नहीं आने लगता, उसको समझ में आने लगता है। उसको भले ही समझना है, उसके साथ वालों को समझ में जरूर आने लगता है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए शुरुआत में ही हमेशा याद रखिए, डिप्रेशन शुरू हो उस वक्त रोकने के चांसेस ज्यादा हैं, बजाय कि एक बार अंदर चले जाए इंसान तब वहां से निकलने के। वैसे बिल्कुल ये ड्रग्स की तरह होता है कि दुनिया में जो है वो, ध्यान से देखें अगर आप, तो पाएंगे कि पहली सिगरेट सबसे मुश्किल होती है, उसके बाद की सारी सिगरेट्स इंसान के लिए आसान हो जाती है। इसीलिए पहली सिगरेट से ही आपको बच के रहना है, आपको पहली सिगरेट नहीं पीनी है। बाद की सिगरेट्स को जो है वो धीरे धीरे आपका विल पावर कम होता जाएगा और सिगरेट का पावर बढ़ता जाएगा। और शुरुआत में पहली तक जो है वापस उसको उसको ही मत लीजिए कभी। उसी तरह से डिप्रेशन को भी शुरुआत में आप कर सके, इट इज बेटर टू प्रिवेंट एंड प्रिपेयर देन टू रिपेंट एंड रिपेयर, इसको कहते हैं ना, इट इज बेटर टू प्रिपेयर एंड प्रिवेंट देन टू रिपेयर एंड रिपेंट। तो डिप्रेशन के साइंस आना शुरू हो उसी टाइम पे, फिर से मैं वही कहूंगा, वही 3 तरीके हैं, याद कीजिए अभी मैंने आपको बताए थे। पहला, नेचुरली सिक्रीटेड केमिकल्स को फैसिलिटेट कीजिए। कैसे कीजिए? वैसे ही जैसे आपको करना चाहिए, एक्सरसाइज, भागना दौड़ना, मिलना जुलना, अकेले रहना कम, अपने लिए वक्त निकालना, पर बिना बात के, जिसको हम कहते हैं ना, पूरी तरह से लोनली रहने की कोशिश ना करना, अलोन रहने की कोशिश कभी कभी थोड़ी करना, फिर लोगों से मिलना जुलना, वक्त पे लिखना, वक्त पे खाना, वक्त पे पानी पीना, वक्त पे उठना, वक्त पे पढ़ना, वक्त पे सोना, पूरी 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करना, ये सब चीजें जो है ये सब करिए, है ना। तो अगर आप वो करेंगे तो नेचुरली ये सिक्रेटेड केमिकल्स आपका पहला तरीका होना चाहिए। दूसरा कौन सा होना चाहिए? कॉग्निटिव तरीका, जो कि मैंने आपको बताया, साइकोलॉजिस्ट। और फिर तीसरा जो है वो क्या होना चाहिए? वो आपका केमिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट। एकदम से एंटी डिप्रेसेंट्स पे नहीं जाना चाहिए, मूड एलिवेटर्स पे नहीं जाना चाहिए, एंटी एंजाइटी पिल्स पे नहीं जाना चाहिए। पर आपका डिप्रेशन कौन सा है, ये आप, अगर लगने लग गया है कि बॉस अब अपने हाथ से चीजें जा रही हैं, थोड़ा सा भी लगने लग गया, तो मेरा मानना है इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक टू व्हाट, ऑफ कोर्स पहले एक साइकोलॉजिस्ट, पहले एक काउंसलर। अगर वो इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि आपके साइकेट्रिस्ट की आपको जरूरत है, तो आप जल्दी से फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और फिर वहां से ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट अपना शुरू करें। बट दैट शुड बी द लास्ट रिसॉर्ट, नॉट द फर्स्ट स्टेप, हमेशा याद रखिए। जैसे कि सैडनेस या डिप्रेशन डिप्रेशन को लेकर कई तरह के मिथ हमारे सोसाइटी में बने हुए हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम डायरेक्ट उसको इंटरनेट पर लिख देते हैं कि मुझे इस तरह की परेशानी है। वहां से कुछ ब्लॉग्स हमें देखने को मिल जाते हैं, कुछ वीडियोस हमें देखने को मिल जाते हैं, और हम वहां जो सॉल्यूशन निकल कर आते हैं उन सॉल्यूशन से इमोशनल जो हमारा वेलबींग है उसको ट्रीट करने लगते हैं। तो क्या वो जो तरीका है वो सही होता है, या उसके अलावा कुछ और दूसरे तरीके हो सकते हैं? जैसे कि आपने बताया, अभी आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि शायद एक्सरसाइज वगैरह करना बेटर है,
बट ये जो मिशन है अभी उसका हम लोग यही चलता है कि इंटरनेट पर उसके बारे में कुछ रिसर्च कर लो और जो भी उससे सॉल्यूशन मिल रहा है हम उसको अपनी रूटीन में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मतलब देखिए आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप इंटरनेट पे क्यों नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स जाते हैं, है ना। तो अगर आप जाएंगे और गूगल पे ढूंढ रहे हैं कि भाई क्या है साइंस और डिप्रेशन, आपको सुनने को मिला, आपने पढ़ने को मिला, अगर आपको उससे बस कोई दवाई आप प्रिस्क्राइब जो है वो नहीं कर लें या फिर कोई जो है वो अपने मन से नए नए काम न कर लें, वो ठीक है, वो तो वैसे भी आप नहीं कर सकते क्योंकि अब प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई मिलती भी नहीं और मिलनी भी नहीं चाहिए कभी। पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपको फाइनली अगर इंटरनेट पर ढूंढ कर या सिमिलर प्रॉब्लम्स जिनसे गुजरे हैं लोग उनकी कहानियां पढ़कर अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा मानना है वो भी तो एक सोल्यूशन ही है, उसमें क्या गलत है। तो अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आप इमेजिन कीजिए किसी के आपने ब्लॉग्स पढ़ लिए, किसी की आपने बुक पढ़ ली, आपको उससे अच्छा महसूस हो गया, आई थिंक इट्स अ गुड वे टू डू इट, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो वैसा ही तो है, इट इज एज गुड एज टॉकिंग टू समबडी। तो आप किसी से बात करके आपको अच्छा लग जाए और आप डिप्रेशन में जाने वाले थे और बच जाएं, आप जो है वो लिंकन की आपने बहुत जो है वो बायोग्राफी पढ़ ली और आपने सोचा कि यार अपने तो बड़ी प्रॉब्लम्स है ही नहीं, इसकी तो कम मतलब तो कहीं ज्यादा थी, और फिर आपने सोचा वो निकल सकता है जब परेशानियों से, तो मैं क्यों नहीं निकल सकता। तो ये सब चीजें अगर आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट। मुझे मतलब मैं उनमें से नहीं जो ये कहेंगे कि इंटरनेट पे मत देखो, ऑफ कोर्स आप देखोगे, मेरे बोलने पे भी देखोगे, नहीं बोलने पे भी देखोगे, सभी लोग देखेंगे। हम ऐसी बहुत चीजें इंटरनेट पे देखते हैं जो नहीं देखनी चाहिए हमको, पर हम देखते हैं ना, किसी ने बोला तो नहीं हमको। तो पॉइंट इज फाइनली आप देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा मानना है उससे आप में अगर बिहेवियरली एटीट्यूडिनली अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, वो पढ़ लेने से अच्छा लग रहा है, तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको वो पढ़ने से चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो फिर उसे पढ़ना बंद कर दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, समझ रहे हैं ना। मतलब इंसान को एलर्जी है, राइट। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बड़ा, कोई भी अच्छा डॉक्टर वो ये जानता है कि एलर्जी का पक्का इलाज किसी के पास नहीं होता। मतलब कोई भी लॉजिकल आदमी ये जानता है, इम्यून सिस्टम के कितने लफड़े हैं वो सब लोग जानता है। तो कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आपको एलर्जी के लिए हमेशा से निजात दे देगा। फिर वो होम्योपैथी वाले ट्राई करें, चाहे आयुर्वेदिक वाले ट्राई करें, चाहे मतलब कोई से भी वाले पैथी वाले ट्राई करें, एलोपैथी वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलर्जी का इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर क्या कहते हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर के पास आप जाओगे, उनसे कहो हमें बहुत एलर्जी हो गई है, वो कहते हैं किस चीज से हुई, आपके तो साहब मेरे को दही से हो गई। तो उसका सबसे अच्छा जवाब पता है क्या होता है, तो दही मत खाओ, मतलब एज सिंपल एज दैट, मतलब दैट्स द वे अ गुड डॉक्टर वुड बी। सिंपल सी बात है ना, असली डॉक्टर कॉम्प्लिकेट थोड़ी करेगा। आपको धुएं से एलर्जी हो रही है, अच्छा तो फिर धुएं से बचो, एज सिंपल एज दैट, यही बोलेगा ना आपको। राइट। इस तरह से आप जो है वो फाइनली, आपको अगर लग रहा है कि वो इंटरनेट पे सारी सर्चिंग और सर्फिंग से आपको अच्छा महसूस हो रहा है, अगर ये लगता है आप वापस से अपने नॉर्मल की तरफ ग्रेविटेट हो रहे हैं, अगर आपको ये लग गया है, तो आप कीजिए ना, किसने मना किया आपको, बिल्कुल कीजिए, कौन है आपको मना करने वाला। पर अगर लग रहा है कि असर नहीं आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो फिर उसी वक्त फिर रोक दीजिए और फिर कहाँ जाइए, फिर वही तीन चीजों पे, नेचुरली सिक्रेटेड केमिकल, कॉग्निटिव चेंजेस, या फिर लास्ट में केमिकल इंटरवेंशन, एज सिंपल एज दैट। राइट। राइट। तो जैसे अभी आप ये सारी प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे थे, इट्स मतलब काफी अच्छी तरह से मुझे भी समझ में आ रहा है और काफी चीजें मेरी भी क्लियर हो रही है कि किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए। लेकिन आप अगर देखें हमारे समाज में एक टैबू बना हुआ है इमोशनल इलनेस या मेंटल इलनेस को लेकर, कि अगर आप अपने पेरेंट्स या अपने किसी रिश्तेदार या दोस्तों के सामने लेकर जाते हो कि यार शायद मुझे इमोशनल कुछ इलनेस है, तो हमेशा उसको लेकर जो टैबू रहता है उसमें किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है, कि मतलब अगर मैं आज मेरे पेरेंट्स को बोलूं कि मुझे इस तरह की परेशानी है, लेकिन उनका यही होगा कि चलो ठीक है जाओ तुम थोड़ी देर खेल कर आओ या कहीं पर घूम कर आ जाओ, तुम्हें आराम मिल जाएगा, बट उस बारे में कभी बात नहीं की जाती है ना। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने ये सारी चीजें काफी लंबे समय से प्रोसेस कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, शायद मुझे एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही चाहिए। पहले सेक्रेटरी से बात मत जाना बेटा, मैंने अभी तो समझाया। नहीं ठीक है। बिल्कुल आपका कटी गिलास थोड़ा बारह ना हो जाएगा, है ना, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो जब सारे सॉल्यूशंस आजमाने के बाद अगर मुझे लग रहा है कि अभी आपकी कुछ बात बेनिफिट नहीं निकल रहा है, तो मैं किसी के पास काउंसलिंग के लिए जा रही हूँ, तो उसको क्यों अलग नजरिए से देखा जाता है, उसमें बदलाव किस तरह से लेकर आया जा सकता है, मेरा ये सवाल था। विशाखा, आपके सवाल को फिर से मैं, आपका सवाल फिर बुके था, है ना, तो पहला सवाल उठाता हूँ कि हमारे समाज में टैबू है।
मेरा मानना है हमारे समाज में टैबू शहरी समाज में है, हमारे गांव के समाज में अभी भी नहीं है। हमारा गांव का समाज जो है वो ऑफ कोर्स कुछ गांवों में ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा ही अंधविश्वास है और वो तो बहुत गलत है। पर हमारे गांव के समाज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी है, हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी मेंटल इलनेसेस को जो है वो अलग अलग तरीकों से मैनेज करना सीख लिया था, है ना। इसको बाबा आते हैं, है ना, इसको देवी जी आती हैं, है ना, इसको जो है वो ये प्रॉब्लम हो गई है और ये जो है वो इस टाइम पे ऐसी हो जाती है और चांद के टाइम ये ऐसा हो जाता है। ये सब चीजें सबको सब मालूम था, सबके ऑब्जर्वेशन थे, एम्पिरिकल था वो सब कुछ, ऐसा नहीं था एक्सपेरिमेंटेशन भले ही नहीं था, वो सब एम्पिरिकल था। तो मेरा ऐसा मानना है कि फाइनली शहरी समाज की प्रॉब्लम ज्यादा है, नो डाउट अबाउट दैट। हाँ, पर गांव में कहाँ गड़बड़ हो गई, उन्होंने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया, बस वहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई। अगर आप उसको अकोमोडेटिंग है उसकी तरफ तो दैट्स फाइन, बट यू कैन नॉट रियली फॉलो सुपरस्टिशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट वर नॉट देयर टू बी सॉल्व्ड बाय इट, एंड व्हिच वाज वेरी बैड। पर अब हम शहरी समाज को देखें, तो शहरी समाज में अगर आप ध्यान से देखें तो ये टैबू, मतलब मुझे तो लग रहा है मैं ऑलमोस्ट पिछले 2-3 वेबिनार में बात बोल चुका हूँ, एंड मेंटल हेल्थ इज अ लेस अंडरस्टूड, लीस्ट अंडरस्टूड एंड मोस्ट ओवरहाइप्ड कॉन्सेप्ट, है ना। तो हम लोगों में से अधिकतर लोगों को दरअसल कुछ नहीं पढ़ा हमने कि ब्रेन कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, कुछ नहीं पढ़ा। और हम तो जो है उसके बारे में फोकट की बात करते रहते हैं। मतलब मेरा मानना है, आपने बताइए कितने लोगों ने यहाँ पे साइकोलॉजी या न्यूरोसाइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश की होगी पिछले 2 महीने में, 3 महीने में? किसी ने भी नहीं की होगी। आप मानेंगे नहीं, आप कह रहे थे ना सोशल इंटेलिजेंस का ऑनलाइन कोर्स होता है, सोशल इंटेलिजेंस का ऑनलाइन कोर्स करना अगर हम किसी स्कूल को या कॉलेज को बोलेंगे तो यकीन मानिए हमको उनको समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। क्यों समझाने में टाइम लग जाता है? इंडिविजुअल्स उसको लेते हैं ऑनलाइन, पर आप सोच के देखिए उनको समझाना क्यों मुश्किल है। क्योंकि वो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी बात करते रहेंगे पर मेंटल हेल्थ की बात नहीं करेंगे। आप सोच के देखो ना, मतलब आप सोच के देखो, मुझे आप कभी पेन ड्राइव खरीदते हो तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हो कि नहीं? करते हो ना। आप अगर खरीदते हो कोई भी वॉशिंग मशीन तो उसका आप मैनुअल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? है ना, पढ़ते हो ना। तो फिर आप मुझे बताइए, ये जो ये मशीन है, इसका मैनुअल पढ़ा आपने? आपको मालूम है कैसे काम करता है? नहीं मालूम ना। क्यों नहीं मालूम बताइए? क्योंकि आपने कभी कोशिश ही नहीं की। जहां से और जहां पर हम अपनी जिंदगी जीते हैं उसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। ये 1200-1300 ग्राम की चीज जो यहाँ पर रखी हुई है, जो कि 2 कप पाम में आ जाती है, इसके बारे में कितने लोगों को पता है ये कैसे काम करता है? नो बडी वांटेड टू डू दैट, है ना। अब सिंपल सी बात देखिए आप, तो ये टैबू है ही नहीं। पहले तो इसके बारे में आई थिंक इट्स लीस्ट अंडरस्टूड एंड मोस्ट ओवरहाइप्ड कॉन्सेप्ट। तो पहले तो इसे समझना शुरू कीजिए, ये कैसे काम करता है। जैसे जो लॉज होते हैं साइंस के, बाकी चीजों के, है ना, जैसे न्यूटन के हैं, जैसे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, ये जैसे हैं वैसे ही यहाँ के भी कुछ बहुत ही क्लियर से प्रिंसिपल्स। ये अगर समझ लिया आपने तो बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। तो पहले तो टैबू नहीं है, लीस्ट अंडरस्टूड मोस्ट ओवरहाइप्ड। अब वापस आऊं, आपने जो एग्जांपल दिया था कि भाई अगर मैं अपने मम्मी पापा से बात कर रही हूँ और कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है और वो कहते हैं बाहर खेला, तो ये गलत है? मेरा मानना है ऑफ कोर्स ये गलत है। पहले तो आपको अपने मम्मी पापा को इंस्टॉलमेंट्स में रोज बात करनी ही चाहिए। कोई भी नॉर्मल माँ बाप, अगर वो बहुत बड़ी परेशानी से न गुजर रहे हो, ऑफ कोर्स जब परेशानी से गुजरते हैं प्रायोरिटी बदलती है, तो कोई भी नॉर्मल माँ बाप जो हैं पेरेंट, वो हमेशा ये पूछेंगे ना बच्चे से आने के बाद कैसा दिन रहा। फिर चेक करेंगे, उसको देखेंगे वो थोड़ी सी सैड दिख रही है, थोड़ा सा सैड दिख रहा है, उसके पास बैठेंगे, उसको कहेंगे क्या हो गया, आज कुछ गड़बड़ हुई है? हाँ, आज इससे लड़ाई हुई, आज फिर इससे लड़ाई हो गई। वो कहते हैं नहीं, आज लड़ाई इससे नहीं हुई, आज इससे हुई है। अब फाइनली क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट में बात निकलती जा रही है। आपको याद है ना वो 3 वजहें क्या थी? एक्सट्रीम एक्सपोजर, है ना, पीक प्रेफरेंसेस और सबमिसिव सप्रेशन। तो आपने क्या किया, सप्रेस नहीं होने दिया ना, उसको निकाल दिया बाहर। तो रोज जो है ये इमोशनल हाइजीन का जो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको इमोशनल हाइजीन तो रोज मेंटेन करना पड़ेगा ना विशाखा। तो वहां तक बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए। पहली इंस्टॉलमेंट्स में जो पे हो जाए उसको लमसम में क्यों पे करना? एज सिंपल एज दैट। पर आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ माँ बाप न तो बच्चों को ध्यान से देखते हैं, न बच्चों की बात को ध्यान से सुनते हैं, और न ही बच्चों की प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा ध्यान में लाते हैं। बस वो गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। और वहां पर ऐसे लोग फाइनली कह देते हैं कि तुम तो बीमार हो। जबकि कोई भी मेंटल या इमोशनल बीमारी, अनलेस कोई इन्फेक्शन या ब्रेन इंजरी से हुई हो, कोई भी मेंटल या इमोशनल बीमारी ग्रेजुअली बिल्ड होती है। आपको उसके साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं, और जब वो साइंस और सिम्टम्स दिखें तो शुरुआत में ही उसे कैप्चर करके उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये तरीका बेस्ट होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। अभी आपने थोड़ा सा इस बारे में भी एक्सप्लेन करा है कि फैमिली को किस तरह से
सपोर्ट करना चाहिए अगर घर में इस तरह की वो लोग कुछ परेशानी देख पा रहे हैं। तो जैसे अभी हम ऑलमोस्ट हमारे सेशन के क्लोजर पर जा रहे हैं, तो मेरा ये सवाल आखिरी है आपसे कि इस समय पर एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट आप किस तरह का एक मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि ये जो सिचुएशन है इसमें किस तरह से वो लोग खुद को अच्छे से रख सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं और अपने इमोशनल जो है उसको स्टेबिलिटी बना कर रख सकते हैं। राइट विशाखा, मैंने पहले भी कहा था मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जो है इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस है, जो कि मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के इंटरसेक्शन पे आता है। और मेरा जो आपको मैसेज होगा सब लोगों को जो सुन रहे हैं वो दरअसल उसी से होगा कि मुझे लगता है कि इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से बात करनी चाहिए, उसका जो डोमेन है वहीं से बात करनी चाहिए। तो मेरा बड़ा सिंपल सा एक ही इनपुट होगा आप सब लोगों के लिए, और वो वही होगा जो मैंने बीच में आपको दिया था। वो क्या दिया था? इस वक्त जब मुश्किलें चल रही हैं, अपनी लाइफ के लैंडस्केप को एक कंट्रोलेबल्स में बांटिए। फिर से सुनिएगा, लाइफ के लैंडस्केप को कंट्रोलेबल्स में बांटिए, और एक एक कंट्रोलेबल को, जो चंक है, एक एक कंट्रोलेबल चंक को दरअसल ध्यान देते हुए क्रीचर ऑफ हैबिट बन जाइए। एक बहुत ही क्लियर शेड्यूल फॉलो कीजिए एंड जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। अगर आप ये कर गए तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, और अगर ये वक्त नहीं गुजरेगा तो यकीन मानिए आप इस बहाने ही सही अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डॉक्टर स्टीफन कोवे ने बड़ी खूबसूरती से कहा था, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इंसान को अपनी जिंदगी में सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ज्यादा वक्त बिताना चाहिए और सर्कल ऑफ कंसर्न में कम। अगर वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कम ज्यादा वक्त बिताएगा तो धीरे धीरे उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपांड होता जाएगा और सर्कल ऑफ कंसर्न अपने आप ही कम होता जाएगा। इसलिए प्लीज मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन दिस एडवाइस। ओके, convert life landscape into controllables, become a creature of habit, make a clear schedule and focus on one thing at a time. Okay, that should be it. अभी एक्चुअली हमारे पास कुछ सवाल भी आ रहे हैं और आई थिंक कि मतलब आई आई होप कि अगर हम उनमें से कुछ सवालों को यहाँ पर पिक करके जवाब दे पाए। Please go ahead. तो एक जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि इट्स हार्ड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन फॉलोइंग अ रूटीन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, व्हाट डज वन डू टू कीप द सेल्फ मोटिवेटेड? वही चार चीजें विशाखा, मैं हमेशा से कहता हूँ, द काइंड ऑफ पीपल यू मीट, द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड, द काइंड ऑफ थॉट्स यू लिसन टू एंड द काइंड ऑफ कंपनी यू कीप डिसाइड द काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम। आप जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के विचार सुनते हैं और जिस तरह के दोस्त चुनते हैं, वो तय करता है कि आप किस तरह के शख्स बनते हैं। आप ऐसा कोई दोस्त पकड़ लीजिए जो रोज आपको 10 बजे फोन करके कहता हो चल पढ़ने बैठे, है ना। आप कोई ऐसा वो चुन लीजिए फ्रेंड, या कोई अपने कजिन के साथ जो है वो ऐसा आटा साटा कर लीजिए कि रात को अल्टरनेट डेज जो है वो 9 बजे वो कहेगा ओके टाइम हो गया है चलो वॉक करते हैं, तुम उधर वॉक करो मैं इधर वॉक करता हूँ, वॉक करते करते बात करेंगे, ठीक है ना। या आप ये तय मानिए कि आपको रोज एक बुक का कुछ पोर्शन तो पढ़ना ही है, एक ऐसी बुक जो आपको बेहतर बताती है ना। मोटिवेशनल स्पीकर्स को मत सुनिए, बिना बात के मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम मत कीजिए, आपको जान के आश्चर्य होगा, पर बाकायदा रिसर्चर्स बताती हैं कि वो लोग जो ज्यादा मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो ज्यादा डिप्रेस्ड और नर्वस रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि इंसान जो है वो सिर्फ बहुत ही सुलझे हुए काम करे, और वो क्या है, अच्छी किताबें पढ़िए साहब, है ना। और अच्छी किताबों में प्लीज वो सब मत पढ़िएगा, वो जो ये बड़े बड़े नाम है ना, जिन्होंने पता नहीं कौन कौन से ऐसे नाम वो डाल रखे हैं कि ऐसा अंदर उतरो अपने और ये अंदर उतर के, ऐसी बातें मत करो। थोड़ा साइंस पढ़ो, थोड़ा बिहेवियरल साइंस पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, न्यूरोसाइकोलॉजी पढ़ो, न्यूरो साइंस पढ़ो, थोड़ा सा कोई भी कोर्स वोर्स करो, थोड़ा बहुत इस तरह जो भी करना होगा, लेकिन फाइनली वो सब पढ़ना बंद करो। कॉमन सेंस ड्रेस्ड अप बातें जो होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है, ठीक है ना। जिस ज्ञान के पीछे विज्ञान नहीं हो उसका संज्ञान नहीं लेना। तो कोशिश करो कि कोई अच्छी बुक पढ़ो, अच्छी बुक किसी अच्छे ऑथर की, किसी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ो, जो भी पढ़ना चाहते हो थोड़ा पढ़ो, मोटिवेट हो गए, फिर आसपास क्या करो, अच्छे विचार सुनो, अच्छे दोस्त चुनो, है ना। ये अगर आप करते रहे तो आपको मोटिवेशन बना रहेगा। अगर और एक और चीज, आप में से अधिकतर लोगों को जो लगता है ना कि जो लोग ये कहते हैं कि मोटिवेशन बना रहेगा उनका बना रहता है, नहीं, किसी का भी शेड्यूल ऐसा कभी नहीं होता लेडीज एंड जेंटलमैन, हमेशा ऐसा होता है, ऐसा 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 ऐसा
ऐसा पॉइंट ये नहीं है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, याद रखना जिसने भी ये सवाल पूछा है, पॉइंट ये नहीं है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, पॉइंट ये है कि आप कितने रेजिलियंट हैं। स्ट्रांग मतलब नीचे न गिरे, रेजिलियंट मतलब जो गिर के वापस आए। जैसे ही शेड्यूल आपका नीचे जाए तो एक आध दिन गच्चा अगर हो रहा है तो हो जाना चाहिए, और फिर जो है वो उसकी ग्लानी में मत जाइए, गिल्ट में कि हे भगवान मेरा शेड्यूल टूट गया, कुछ मत कीजिए, वापस वापस से उसी शेड्यूल पे आ जाइए और चलना शुरू कर दीजिए। बस बकवास मत कीजिए, काम कीजिए, इंपॉर्टेंट ये है। भाई हम उस उन सारी बातों में कई बार इस तरह से गिर जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि किस तरह से हम अपनी बातों को सामने रखें। और एग्जैक्टली। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अगर इमोशनली अपनी बातें सामने रखते हैं तो ये समझने लगते हैं कि शायद मैं वीक हूँ, और मुझे वीक नहीं होना है, इसलिए मैं ये बात नहीं बताना चाहता हूँ किसी को। Yeah. आपने सही कहा विशाखा, मुझे लगता है कि लोग वीक होने से डरते हैं। मुझे लगता है कि इंसान अगर वीक है तो वीक दिखना चाहिए उसको, उसमें गलत क्या, उसमें बुरा क्या। मतलब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप वीक हैं पर आप इस वक्त वीक हैं, ये दो अलग चीजें हैं ना। वीक हैं ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया, आप इस वक्त वीक हैं ये तो एक एक टेम्पररी सर्कमस्टांस हो गया। टेम्पररी सर्कमस्टांस जब आए तो वैसे वीक रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और कोई अगर तुमको ये बोलता है कि तुम वीक हो तो कहना हाँ इस वक्त हूँ उसमें क्या दिक्कत है। मतलब टेक इट एंड देन डिस्कस इट, उसमें क्या दिक्कत है, मैं वल्नरेबल हूँ, मैं अभी वीक हूँ, और बात करो, उसमें क्या दिक्कत है। पर उसको अपने आप से मत जोड़ लो, उसे अपना कैरेक्टर स्केच मत बना लो। On that note, thank you so much sir. Actually आपने काफी सारी चीजें यहाँ पर आज क्लियर की है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे जो काफी समय से हम लोगों के दिमाग में चल रहे थे, तो वो सारे क्लियर हुए इंटरेस्टिंग तरीके से। काफी एग्जांपल्स आपने दिए हैं। So thank you so much for joining us on this call, and अगर आगे भी कुछ सवाल हमारे पास आते हैं, we'll reach out to you and we'll try to give all those answers to our audience. And थैंक यू काका, आपको और आपके इस बहुत अच्छे प्रयास को, आनंद प्रवाह को मेरी तरफ से, और मैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट हूँ और सोशल एजेंट्स और सीएचएस मेकर्स की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। thank you so much sir. Thank you so much. ओके Hope बाय। to see you.